Hello student, this is a chapter A Trek Through the Himalayas composed by Srinjay Chakravarti for class 7. A very nice chapter, a chapter full of adventures, full of natural beauties and also show a glimpse of our natural scenery. The chapter name is Trek Through the Himalaya, मीन्स हिमालय पर ट्रैक जो मार्ग होता है उस मार्ग के थ्रू जो हिमालय पे जाना. In this poem, Srinjay Chakravarti describes his experiences on the difficult trek through the mighty Himalaya. The poet Sanjay Chakravarti describes here his beautiful experience on the difficult trek through the mighty Himalaya. उस mighty हिमालय पे difficult trek के माध्यम से चढ़ने के जो उनका अनुभव है उस अनुभव को यहाँ पे वो वर्णन कर रहे हैं, उसको शेयर हमसे वो कर रहे हैं. ओके, कैसे उस उतनी ऊंचे हिमालय पे वे लोग चढ़ते हैं. तो ही इज़ डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस हियर अबाउट हिज climbing to the mighty Himalaya. Now let's see the poem. The journey lasts for days and days. He says that our journey continues for day and day. Means दिनों तक हमारी यात्रा चलती रहती है, कई दिनों तक. We trek up valley, hill and slope. And he says that the climbers trek up. They climb up through the valley, hill and slope. वैली के ऊपर चढ़ाई करते हैं, हिल्स के ऊपर, स्लोप ढलानों के ऊपर चढ़ते रहते हैं. We carry with ourselves the hope to traverse strange untrodden way. Traverse means क्रॉस करना, उस पार जाना. Untrodden way means एक ऐसा way that is not taken by anyone, that is made by the self ideas. So he says that we, means the climber, carry with ourselves the hopes. We have all the hopes, we treasure the hopes in our heart that we will cross the strange and the way that is not taken by anyone. Means we will make a new way for us, and to use the new way we will cross all the difficult path that will come in our way. So he says that हम लोग एक ऐसी उम्मीद को लेकर चढ़ाई करते हैं जिस उम्मीद में हम स्ट्रेंज से स्ट्रेंज वे को क्रॉस करके एक न्यू वेज टेक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं. विंटर नाउ अ वर्ल्ड ऑफ क्लाउड्स. और काफ़ी हाइट पे आप जब अगर देखेंगे तो लगता है कि बादल उस पर्वत के ऊपर टच हो गया है. तो कह रहे हैं वी इंटर नाउ वर्ल्ड ऑफ क्लाउड्स. अलॉन्ग द वे वी हियर द कॉल ऑफ माउंटेन, विंड एंड वाटरफॉल. ही सेज दैट ड्यूरिंग क्लाइंबिंग ओवर द माउंटेन वी फाउंड दैट द क्लाउड्स एंड द mountains are connected to each other. It seems that this time we are in the world of clouds. लगता है कि हम लोग अब बादलों के देश में आ गए हैं. और on the way we hear the different voice of mountains, wind. पर्वतों पे चलने वाली जो हवाएं होती हैं उन हवाओं को हम सुनते हैं. वाटरफॉल, there are so many waterfalls falling from the mountains. So we hear the sound of waterfall. These are the natural sounds the climbers get during climbing over the mountains. The pallid mist is spreading shrouds. Pallid mist means जो fog होता है, कोहरा, हल्का कोहरा भी चारों तरफ ऊपर फैला रहता है. क्लियर कुछ दिखाई नहीं देता है पर पहाड़ों पे. श्राउड्स, और जैसे लगता है कि वो श्राउड्स के रखा कवर बना करके उसको रखा हुआ है. तो एट दैट टाइम ही सेज दैट ड्यूरिंग आवर visit, our climbing to the mountains, we found that the fogs and the
The fogs are also covered to the mountain's crest, and it seemed that we have to move forward in this fog. Okay, now the next is at last we reach the final peak. और फिर कर रहे हैं बाई एंड बाई फाइनली वी बिकम सक्सेस इन आवर क्लाइंबिंग एंड वी टच द फाइनल पिक. द समिट बिकॉन्स अस टू कम एंड द समिट मीन्स होता है टॉप, शिखर, चोटी. बिकॉन्स जैसे लगता है कि जो टॉप है, जो शिखर है, इंडिकेट्स अस, हमें इंडिकेट करता है, निर्देशित करता है, दिखाता है टू कम, कि आ जाओ बस. यू आर नाउ just about to come on the top, the summit. It seems that at that time the top is indicating us, the top is calling us that don't worry, you are now just about to touch the top. At that time the air is cold, air बहुत ही उस समय ठंडा रहती है. Our feet are numb and due to the effect of cold air the feet are numb. हम लोगों के पैर सुन्न पड़ जाते हैं, ठंडे की वजह से बिल्कुल पैर सूने पड़ जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं. तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ द कोल्ड विंड ऑन द टॉप ऑफ द हिमालयाज, ऑन द माउंटेन्स. वी क्लाइम टू रीच द ग्रैल वी सीक, एंड देयरफॉर when we are about to touch the peak, we see the top of the mountain. At that time we find that we are trying to achieve a very hard thing. Grail we seek means achieve very hard or difficult things. तो we climb to reach the grail we seek. इस तरह से हमें लगता है कि हम लोग बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ को प्राप्त करने के लिए, एक बड़ी कठिनाई को प्राप्त करने के लिए हम लोग चढ़ रहे हैं. we are going to achieve a great thing in our life. Now the next, the path is steep and narrow there. जो पाथ वहाँ के होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं, नैरो होते हैं, सकरे होते हैं. इट्स नेक्स्ट इट्स वे, जैसे कि सांप होता है ऐसे कर्विंग कर के घुमा हुआ जिग जैग स्टाइल में, वैसे ही जो मार्ग होते हैं पहाड़ों पर वो भी टेढ़े मेढ़े होते हैं. जहाँ पे जैसा उनको प्रॉपर वे मिलता है उसी के अकॉर्डिंग अपने मार्ग को बनाते हैं. द स्टेयर्स ऑफ स्टोन नाउ मार्क द रूट वी मेक आवर ओन. एंड द स्टेयर्स ऑफ स्टोन, और उस पर्वतों पे, जो पहाड़ की, जो पर्वत की जो पत्थर हैं, उन पत्थरों पे वे स्टेयर्स, अपनी स्टेयर्स बनाते हैं. नाउ मार्क, वे अपना मार्क बनाते हैं. द रूट वी मेक आवर ओन, हम अपने लिए चढ़ने के लिए अपने लिए नई सीढ़ियाँ बनाते हैं, नई मार्क बनाते हैं. किसी के बनाए हुए सीढ़ियों पर नहीं चढ़ते हैं, हम खुद अपने लिए नए उस पर मार्क्स बना करके, निशान बना करके उन पर हम चढ़ाई करते हैं. द sunshine gilds the lucid air, and at that time it seemed that sunshine gilds, जो सूर्य का प्रकाश होता है बिल्कुल गोल्ड एकदम कवर कर लेता है द lucid एयर, और जो एयर होता है बिल्कुल क्लियर, स्वच्छ, क्लीन एंड क्लियर एयर वहाँ पे मिलती है. तो वी गेट वेरी क्लीन एंड क्लियर, वेरी फ्रेश एयर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स, एंड आल्सो द sunshine also cover with its gold rays to us to the mountain. Now the last stanza of this poem. The peak is stark with gelid snow, on the top of the Himalaya. He says that we found that peak means चोटी, जो टॉप होता है, समिट होता है, स्टार में डेकोरेटेड, सजा हुआ, कवर हुआ, विद जेलिड स्नो, जमे हुए बर्फ़ से बिल्कुल सजा रहता है. अर्थात जो ऊपर पहाड़ की जो चोटी थी उस साइड पे इट इज़ डेकोरेटेड विद, इट इज़ कवर्ड विद जेलिड स्नो मीन्स आइसी स्नो. वी लुक वेयर स्काई एंड अर्थ हैव मर्ज्ड, एंड फ्रॉम दैट हाइट when we
start to another points, we find that sky and earth have merged. Merged means मिलना एक दूसरे से ऐसा लगता है कि धरती आकाश एक दूसरे से मिल गया हो. ऐसा तो होता नहीं धरती आकाश मिल जाए, बट फ्रॉम अ हाइट when you see to a little see to a long distance, we found that their earth and sky have merged to each other. From high above our souls are purged. और फिर उस हाइट पे जाने के बाद हमें रियलाइज होता है कि आवर सोल्स आर पर्ज्ड. हमारा जो आत्मा है, सोल्स है, बिल्कुल पर्ज्ड हो चुका है, प्योरीफाइड हो चुका है. इतनी प्योरिटी में हम आ चुके हैं जहाँ पे बिल्कुल रूप से हम लोग शुद्ध हो चुके हैं. वहाँ के प्योर एयर को देखकर, गोल्ड सनशाइन को देखकर, उस बर्फ़ को देखकर लगता है कि हम एकदम बिल्कुल पर्ज्ड हो चुके हैं, प्योरीफाइड हो चुके हैं. हमारे सारे बैड थॉट्स, फीलिंग्स सब कुछ समाप्त हो चुका है. फॉरगॉटन लाइज द वर्ल्ड बिलो. और ऐसा लगता है कि जो नीचे जो संसार है, इस संसार के सारे झूठ को, सारी कमियों को, सारी बैड फीलिंग्स को बिल्कुल हम भूल चुके हैं. तो सच टाइप ऑफ फीलिंग्स वी रियलाइज on the top of the Himalayas. This is a feeling we get there. Okay students, this is a poem written by Srinjay Chakravarti, a very nice poem, a good experience shared by him about the Himalaya. I hope this is clear to all of you. You will see the video, subscribe my channel, and then you will get the clearance of this poem. Okay, very good. Goodbye.